ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہیں گواہ، آیات ہیں گواہ، برباد ملک ہو گئے قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ۔ فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پیش فرما رہے تھے، دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ اب میں وقتوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ اس بزم کے آخری خطیب عظیم مقرر جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کو میں بڑے ہی ادب کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اس شعر سے میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادمہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ مائک پر جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جن سے انسان کی عجب ہے خاصیت، جن سے انسان کی عجب ہے خاصیت، ہے بہت بھی اور کم بھی ہے بہت، ہے بنی آدم سے پر ساری زمین، ہے بنی آدم سے پر ساری زمین، آدمی ڈھونڈو تو ان میں نہیں، یوں تو کہلاتے ہیں یہ انسان سبھی پر نہیں انسان ان میں ایک بھی، یوں تو کہلاتے یوں تو سب انسان ہے تھوڑے بہت، واقعی انسان ہے تھوڑے بہت. اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا. کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، خلیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا، خلیل سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا. یہاں سے لے کر کے وہاں تک چھوٹا مجمع بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جلسہ تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے. محبت کے حوالے یہ جلسہ چل رہا ہے. اللہ ہمارے
इस जलसे में बैठने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं, दुआ तक साथ देने के लिए तैयार हैं, और दिलों दिमाग हाजिर रख करके सुनने के लिए तैयार है। दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को तब पढ़ाएंगे जब खा पी करके बचेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में तालीम हासिल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 बच्चों में एक बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा बेटी में सिर्फ बेटा को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए अब समझ में आया कि कहाँ जा रहा है, यहाँ है या कहीं और है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। मजमा थोड़ा हौसला रखता है, ज़्यादा हौसला नहीं रखता, ज़्यादा इम्तिहान लेना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। सिर्फ 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। वो कौन सी चीज़ है कि बच्चा के ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे बच्चा जितना छोटा हो, बच्ची के ऊपर फ़र्ज़ है चाहे बच्ची जितनी छोटी हो, और माँ बाप उसकी वजह से जन्नत में जाएंगे, जन्नत वाजिब है। वो चीज़ मरने के बाद भी बाकी रहती है। वो कौन सी चीज़ है? सबसे अफजल सदका है, उसका सदका करना सबसे अफजल सदका है। 100 रकात नफिल पढ़ने से भी बढ़ कर के है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हम खुदा से क्यों मोहब्बत करते हैं, नबी से क्यों मोहब्बत करते हैं? ये तो मालूम है कि खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा से मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, और नबी से मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। लेकिन मोहब्बत करते क्यों हैं? खुदा से मोहब्बत क्यों करते हैं, नबी से मोहब्बत क्यों करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, कौन मुसलमान है जो मलून है? कौन मुसलमान है जो मुसलमानों की जमात से खारिज है? कौन मुसलमान है जो नाम का मुसलमान है? कौन मुसलमान है जो बर्बाद है? बिल्कुल आखिरी मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 सवाल हैं। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दुआ कीजिए दिल से, अल्लाह जिस मस्जिद का जलसा हो रहा है उस मस्जिद की ज़रूरत को अल्लाह ख़ज़ाने गैब से पूरे फरमाए। इंशाअल्लाह आज़ान आज सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? ज़रा ध्यान रखिएगा। आप लोग सोचते हैं कि बीच बीच में इम्तिहान नहीं होगा, इम्तिहान जारी रहेगा। दिल और दिमाग को टटोलने के लिए, ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए। आप हमारे मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। अगर आपने सही से सुना नहीं, मैंने सही से सुनाया नहीं, तो मेज़बानी और मेहमानी का हक़ अदा नहीं होगा। 3 सवाल थे हमारे। पहला सवाल था, वो कौन सी चीज़ है, उसका सदका करना सबसे अफजल। वो कौन सी चीज़ है, मरने के बाद भी बाकी रहती है। वो कौन सी चीज़ है, चाहे बच्चा जितना छोटा हो, बच्ची जितनी छोटी हो, उस पर वो फ़र्ज़ है, और माँ बाप उसकी वजह से जन्नत में जाएंगे। वो इल्म है। इल्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बच्चा के ऊपर फ़र्ज़ है उसका हासिल करना, मरने के बाद भी वो चीज़ बाकी रहती है। माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, जन्नत वाजिब हो गई। अफजल सदका इल्म के सदका से बढ़कर के नहीं है। और 100 रकात कोई नफिल नमाज पढ़े, 1 आयत कुरान सीखे, उसके बराबर ये 100 रकात नफिल पढ़ने वाला नहीं है। दूसरा सवाल था, हम अपने खुदा से क्यों मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से क्यों मोहब्बत करते हैं? खुदा हमें खिलाता है, इसलिए हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।